They are rivals in Kerala, but they are friends and allies at the national level. They're both members of the India alliance that seeks to take on the Modi BJP in the 2024 election. And yet, Rahul Gandhi and Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan of the CPM don't appear to be attacking anyone more than each other. It's become the biggest flashpoint in Kerala and has spilt out over into the larger political crossfire and narrative of 2024, the contradictions and the confusions within the India alliance. The CPM versus Congress in Kerala. Rahul Gandhi has now slammed Pinarayi Vijayan, saying, why is the ED not arresting the Kerala Chief Minister? Meanwhile, Vijayan, very irritated by these broadsides from Rahul Gandhi, has said that he doesn't require a certificate from the Congress as to who needs to speak and how against the BJP. Take a look. The rift within India bloc is out in open. Ever since Rahul Gandhi filed his nomination for Lok Sabha post from Wayanad, the CPM has trained its guns on him, and the Congress leader has returned fire. Hinting at a possible nexus between the CPM and the BJP, Rahul on Thursday once again asked why there was no action against Chief Minister Pinarayi Vijayan, despite many corruption cases. Why is none of this happening to the Chief Minister of Kerala? Why is his membership not being taken away? Why is he not being interrogated by the ED, CBI and all these? Two Chief Ministers are in jail. How come none of this is happening to the Chief Minister of Kerala? I am 24/7 attacking the BJP. And the Chief Minister of Kerala is 24/7 attacking me. He says he is fighting ideological battle against the BJP. Chief Minister Vijayan, on the other hand, rubbished Rahul's attacks, saying the CPM does not require a Congress certificate in the fight against the BJP. NDAക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന നാലിൽ ഒന്നും മുൻ UDFകാരാണ്. മോദിയുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും പറയാനും പൊരുതാനും ഇടതുപക്ഷത്തിന് കോൺഗ്രസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല. The Congress and the CPM, both part of the opposition India bloc, are in a direct fight in all 20 constituencies of Kerala. Vijayan had earlier cornered Rahul, asking why the Congress leader was silent on the Citizenship Amendment Act. രാഹുൽ ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര നടത്തിയല്ലോ. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോ? എന്തേ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാതിരുന്നത്? The CPM and Congress have been political rivals in the state since decades. But for once, we are seeing this become a Pinarayi Vijayan versus Rahul Gandhi contest in this political battle in the state to prove who is the better option against the BJP at the centre. CPM candidate from Wayanad, Annie Raja, has claimed the Congress is only using Wayanad for political gains and that it never takes a stand when required. When we were passing through so many natural calamities, the central government had to help the state government, but they did not. He could have helped the people to come out from this tragedy in a different way. He never came and stood with us. Even as the Congress and CPM spar, the BJP is focusing on a few priority constituencies in the state where it has never won a seat. With Shivimol KG, Bureau Report, India Today. And Rahul Gandhi has been going viral quite a bit. Many of his comments in light of the Congress's manifesto have received a huge amount of traction, but one of them has backfired a little bit, courtesy Mr. Gandhi himself, who has had to retract. He talked about how ek jhatke se garibi ko mita denge, only to backtrack on those very powerful words. Take a look at this. और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे. देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा. हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है.
And Home Minister Amit Shah has just broken his silence on the Chhattisgarh Naxal operation. In his first comments on the operation, he has made a huge promise saying that the Modi 3.0 government that the BJP sees coming into power on June the 4th will eradicate Naxalism in 2 years. Big promise coming in from the Home Minister. Listen in to this excerpt from an exclusive interview to India Today's Rahul Kanwar. आपका एक बड़ा वादा है कि नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। अभी बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ और जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कुछ चुनाव से जोड़कर या कुछ गड़बड़ या फेक टाइप का इनकाउंटर उनको कोई बू आ रही है कि कुछ गड़बड़ है इसका इनकाउंटर। देखिए, इनको सब चीज में बू आती है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर जिसको दंड देना चाहता है सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। मुझे लगता है इनकी मति हर ली गई है। अब परिवर्तन देखिए, कांग्रेस के समय में एक जमाने में 1/3 देश नक्सलिज्म की चपेट में आ गया। पशुपतिनाथ टू तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी। 10 साल में मोदी जी के शासन में और 19 से लेकर अब तक हमने 250 सुरक्षा कैंप बनाए। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कंप्लीटली नक्सलिज्म से मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा था क्योंकि 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार ने हमें ढंग से सहयोग नहीं किया। सरकार बदली, प्रायोरिटी भी बदली और 90 दिन में 86 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 250 सरेंडर हुए हैं, 126 अरेस्ट हुए हैं। राहुल जी, मैं आपकी चैनल पर बहुत विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दे दें। हम 1 या 2 साल में इस देश से नक्सलिज्म को उखाड़ कर देंगे हमेशा के लिए। जैसे LTTE खत्म हो गया जी, आपको विश्वास है कि ये हो सकता है? हो गया भाई, बिहार में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया। पर मेन तो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट मेन नहीं है, वहां पर भी इतना ही था। बुरा पहाड़ पर आज तक कोई नहीं जा पाता था, यही 1 साल में हुआ है। पूरा बिहार यही 2 साल में मुक्त हो गया। पूरा उड़ीसा भी यही 2 साल में मुक्त हुआ है। Another big charge that the opposition has been making against the government is the misuse of central agencies, including the Enforcement Directorate, which is what we started our show today with. The agency misuse charge is something that the Home Minister has also taken on in this interview to Rahul Kanwar. Take a look at this. पर सर, आरोप तो ये भी लगता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसका सरकार बेजा इस्तेमाल करती है कि जब कोई विपक्ष में होता है तो कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किया अजीत पवार में, जब वो आपके अलायंस में आ जाते हैं तब उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती है। देखिए, अभी भी मैं फिर से रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, मीडिया में एक बार आने के बाद हमने एक भी केस बंद नहीं किया है किसी का। हाल ही में वो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई कि 25 जो नेता विपक्ष के थे आपके साथ जुड़े, 23 में केस बंद हो। आप तय तक जाए ना, आप भी तो खोजी पत्रकार हो, तय तक जाइए। मैं आपको स्टेटमेंट करता हूं कि एक भी केस हमने बंद नहीं। पर सर, उसका दूसरा यह है कि उस तरीके से एक्टिवली आपने परसू भी तो नहीं किया, जैसे जब अगर वो विपक्ष में है तो हर रोज ईडी का सामान आ रहा है। चार्जशीट कोर्ट के सामने है, कोर्ट को अब केस चलाना है, परसू क्या करना है। कोर्ट हमारे कहने से नहीं चलती है। नहीं, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उस जोश से नहीं लड़ती जब विपक्ष में होता है समन समन समन। ऐसा आप मानते हो, ऐसा आप मानते हो। ये तो राहुल जी और सोनिया जी पर केस है, वो भी कहां चल रहा है। चिदम्बरम साहब पर केस है, वो भी कहां चल रहा है। वो क्या हमारे में आ गए है क्या? 9 साल हो गए राहुल सोनिया पर केस हुए। वो कौन सा ट्रस्ट था उनका, कोई राजीव अखबार का घोटाला था? नहीं, राजीव गांधी, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड वाला। चिदम्बरम साहब का केस हुए कितने साल हो गए, कोर्ट में पड़े हैं। हमने हमारा काम कर दिया है भाई। तो आप कह रहे हैं जैसे प्रफुल्ल पटेल तुम कहते हैं तो फास्ट करा देते हैं, कोर्ट को रिक्वेस्ट डालते हैं, फिर कहेंगे कि विंडिक्टिव अप्रोच है। नेचुरल कोर्स में कोर्ट आ गए, राहुल स्टेटमेंट कर दे, चलो रिक्वेस्ट करो एज ए सिटीजन,
तो हम फास्ट मैं कराते। चाहूंगा कि सब केसेस में, वो ये नहीं कि वो अरे बीजेपी भाई, में हो, ये अलायंस हो। ऐसा है, बेजा प्रायोरिटी इधर और साइड से आप देना भी ठीक नहीं है। आम नागरिक का केस भी महत्वपूर्ण होता है। भाई हमारे साथ नहीं आए, इसके भी इसी स्पीड से चल रहे हैं, मगर चीजों को सेंसेशनलाइज करना और चुनाव के वक्त करना ये ठीक नहीं। And don't forget to watch that full interview with Amit Shah to Rahul Kamal tomorrow at 8 p.m. Remember, India goes to the polls tomorrow. The first phase kicks off. Amit Shah will be filing his nomination in Ahmedabad tomorrow as well, and Gandhinagar tomorrow as well. 8 p.m. is when that full 52-minute interview will play out. And coming up next, a truly shocking revelation about one of... Okay, let's go straight across now to Home Minister speaking to India Today's Rahul Kamal. देश के 80 करोड़ गरीबों को सम्मानजनक जगह समाज में देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में तय किए लक्ष्य है। और ये सारे लक्ष्यों की सिद्धि के लिए तीसरी बार एक मजबूत प्रचंड बहुमत वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की बने। सर, आप तो अब गृह मंत्री हैं, इतना सीनियर पोर्टफोलियो आपके पास है, प्लस पार्टी की जिम्मेदारी भी, ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता होगा आपको अपने चुनाव क्षेत्र आने का? नहीं, मैं आज का दिन ही आया हूँ, अब वोट डालने आऊंगा। ये जो लोग दिखाई पड़ते हैं, इनके बीच में मैं पला बड़ा, हजारों पोस्टर पर्दे यहाँ चिपकाए हैं, वॉल पेंटिंग किए हैं। इन्होंने मुझे 30 साल से विधायक सांसद बनाया, ये मेरे अपने लोग हैं और मैं उनका हूँ। यहाँ आने की बहुत जरूरत नहीं है। मोदी जी का संदेश देने आज आया हूँ, वोट डालने आऊंगा, मगर रिकॉर्ड मार्जिन से गांधीनगर की जनता यहाँ कमल खिलाए। यहाँ के स्थानीय लोग जो आपको पहले से जानते हैं कहते हैं कि जब आप पार्टी के कार्यकर्ता थे तो यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग क्या करते थे, कमल बनाते थे। जी, अब तो बहुत अच्छा लगता है और ये युवा कार्यकर्ताओं के लिए भी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में वंश की राजनीति, परिवार की राजनीति समाप्त हुई है। जो मेरिट्स में काम करते हैं उनकी राजनीति में जगह निश्चित हो सकती है। मोदी जी एक गरीब के गरीब घर से निकलकर देश के और दुनिया के इतने बड़े नेता बने हैं। ये आज सभी युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप इसी इलाके में विधायक भी रहे हैं, अब आप सांसद भी हैं। आप जब बाकी देश के हिस्सों में जाते हैं और अपने घर लौटते हैं गुजरात, क्या फर्क पाते हैं? बंगाल में रोड शो करना या तमिलनाडु में करना और गुजरात गांधीनगर में करने में क्या फर्क है आपकी नजर में? देखिए, पूरा देश मेरे लिए एक है, मगर जब मैं गुजरात और गांधीनगर में आता हूँ तो अपने घर पे आया हूँ, ऐसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। सर, आपके घर में भी देखा जाए तो सब लोग जिस तरीके से आपकी प्लानिंग है हर पन्ने की, क्या आपको लग रहा है कि उससे आपको इस इलेक्शन में एक्स्ट्रा एडवांटेज और बूस्ट मिलता है कि हर वोटर को आपको मालूम है कि वो आपके पक्ष में है, आपके खिलाफ? देखिए, स्वाभाविक रूप से इससे बूस्ट मिलता है। किनको कन्विंस करना है, किनको मोटिवेट करना है और किनको रिक्वेस्ट करके वोट पे ले जाना है, ये सारी चीजें सुनिश्चित हो जाती है। सर, ये बताएं, जो क्षत्रिय समाज में अभी प्रोटेस्ट है उसका कोई असर होगा इस चुनाव में? आपका खेल बिगाड़ सकते हैं कुछ हद तक? देखिए, रूपाला जी ने बड़े मन से माफी मांगी है, हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा के रास्ते खुले हैं। मुझे भरोसा है कि चुनाव के पहले एमिकेबल सॉल्यूशन निकल जाएगा। हम 26 की 26 सीटें गुजरात में जीतेंगे। सर, यहाँ पे महिलाएं बहुत संख्या में, साधारण तौर पे रोड शो में भीड़ भाड़ के चक्कर में कम आती हैं। आपको लगता है कि महिलाओं का यहाँ पे आना ये बीजेपी का लाभार्थी वोट बैंक, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक बन गया है? नहीं, रानी क्षेत्र में बहनों का आशीर्वाद पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस तरह का सुरक्षित वातावरण गुजरात में है, भीड़ भाड़ से किसी भी माता बहन को, बेटी को डरने की जरूरत नहीं। और युवा, क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी है वो उसका एसेट भी है, और अगर इन लोगों को नौकरियां ना मिले,
तो ये लायबिलिटी भी बन सकती है। और बहुत कम साल हैं भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए, तो देश अपनी ग्रोथ में बहुत अहम जंक्शन पे है। ये 10 साल में बहुत काम हुआ है, हर क्षेत्र में स्वरोजगारी बढ़ी है। आज युवा स्टार्टअप कर युवा को रोजगारी दे रहे हैं और कई प्रकार के ऐसे उद्योग जो युवाओं ने विश्व के स्पर्धा में खड़े किए हैं और कई नए नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यूथ का देश के लिए और देश की संपदा का यूथ के लिए उपयोग करने में मोदी सरकार सफल है। क्या ये बात सही है कि आप खुद एक पन्ना प्रमुख हैं? न केवल आपके पास सैकड़ों पन्ना प्रमुख हैं, बल्कि एक पेज ऐसा आपकी सीट में है जिसके आप पन्ना प्रमुख हैं। जी, मैं खुद एक पन्ने का प्रमुख हूँ। कल रात को रिलीजियसली मेरे 30 के 30 वोटर को मिलकर आए हूँ। 3 लोग वैकेशन में जाने वाले हैं। 27 लोगों ने वादा किया है कि मोदी जी को वोट देंगे। वैकेशन में जा रहे हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, वोट देकर जाए, वो कंसीडर करें। आपके पन्ने में आपके खिलाफ कोई नहीं है? भाजपा के खिलाफ कोई नहीं। आपने पूरी फैमिली की ताकत भी लगा दी है चुनाव को मोबिलाइज करने में? ये सभी लोग स्वाभाविक रूप से। तो ये थे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। आप देखिए किस तरीके से जैसे जैसे सूरज ढल रहा है वैसे वैसे और लोग अपने दिन का काम खत्म करके यहाँ पर अमित शाह के रोड शो में आए हैं। और साथ ही साथ यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले, नामांकन से पहले अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए। राहुल कंवल, गांधीनगर, आज तक।